Okay, so oral cavity में we have completed the lip part, the cheeks part, the gums part and the tooth area. Now we'll see the hard palate. ठीक है, hard palate हमें पता है ऊपर जो roof बनाता है oral cavity का जो भी roof होता है that is formed by the palate. There are two types of palates, hard palate and soft palate. So today we'll discuss only hard palate, and even we have discussed earlier. So it is nothing but it is a horizontal plate, clearly visible है, horizontal है. Horizontal का मतलब हमेशा देखो, ठीक है. So this is a horizontal way and forms the interior two-third of the oral cavity. Oral cavity जो complete यहाँ तक होती है, ठीक है, इसका anterior two-third जो है that is formed by the hard palate. अब ये बनता किससे है हम पहले पढ़ चुके हैं. This is formed by two bones. आप लोगों को बहुत ज़्यादा कूलर की आवाज़ तो नहीं आ रही है? No, ma'am. Okay, fine. So hard palate is formed by two facial bones, that is the maxilla and the palatine bone. ठीक है, so these are the two bones. Anteriorly आपकी होती है maxilla, पीछे होती है आपकी palatine. Coming to the borders, hard palate का अगर border देखें तो anteriorly जो है maxillary teeth है सामने, ठीक है, the upper jaw. Then superiorly is a respiratory epithelium, visible है respiratory epithelium है. Inferiorly अगर आप नीचे आ जाएंगे तो inferiorly is the masticatory epithelium, that is the oral cavity का roof बन जाएगा. And posteriorly it is connected or is continued as the soft palate, which is completely muscular. जैसे ही मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी. Okay, ठीक है. जैसे anteriorly जो आपका hard palate है, as the name suggests hard palate, this is bony structure, ठीक है. As similarly जो soft palate है, that is completely soft, and because it is muscular. Coming to the blood supply, so maxillary artery supplies the anterior part, that is a hard palate, and veins अगर देखा जाए तो pterygoid plexus of veins में venous drainage होता है. Coming to the nerve supply is की general sensory nerve supply होगी, यानी pain, temperature and उसका होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. So we have the maxillary nerve की एक branch होती है greater palatine and mesopalatine. These two branches supplies the hard palate. ठीक है, this is all about your hard palate. Hard palate में कुछ ज़्यादा नहीं है. This is a lateral view. अगर आप basal view देखेंगे, inferior view देखेंगे, so this is how the palate looks like. This is the anterior maxillary bone and this is the posterior palatine. ठीक है. Next is the soft palate, जो आपको पीछे दिख रहा है. जैसे कि आपने देखा कि hard palate जो था वो आपका horizontal lie कर रहा था. Similarly, जो आपका soft palate होता है ये horizontal होता है but slightly oblique होता है, बिल्कुल straight नहीं होता है. ठीक है, it is a bit oblique like. Of course, it is mobile because it consists of muscles, so it is mobile. Soft है, mobile है, और posterior में लटका हुआ है. It is not attached posteriorly with anything. ठीक है, so it is posterior अगर देखा जाए तो it is just suspended, ऐसे ही लटका हुआ है किसी चीज से, ये attached posterior. Anteriorly it is connected or attached to the hard palate. ये किस चीज से मिलके बनता है? नॉर्मल सी बात है, इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो हमें पता ही है मसल से बना है. साथ में एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिन्यूरोटिक. हमने पढ़ा था व्हाट इज एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस होता है मसल, टेंडन, कोलाजन, ये तीन टिश्यू जो मिल जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एपोन्यूरोसिस. हमने एक रेडियस और अन्ना के बीच में एक एपिन्यूरोसिस पढ़ा था. ठीक है, एक मतलब बीच में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, but that is same. ठीक है, muscle tissue, fibrous tissue and collagen fibers. These three tissue together forms another structure that is called as epineuritis. So this soft palate जो आपको ये दिख रहा है, this soft palate consists of two things: the muscular tissue, सिर्फ muscles भी present है, and epineurotic tissue present होता है. What does this consist of? Soft palate में क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे nerves पाई जाती हैं, vessels पाई जाती हैं, that is the arteries and the veins, and some mucus glands पाए जाते हैं जिनका काम है oral cavity को lubricate करना, moist करना. ठीक है, और soft palate जो है, जो अगर mainly देखा जाए तो उसके कुछ काम है. तो इसका काम है खाना खाना. खाने खाते वक्त जो deglutition करते हैं, जो हम swallow करते हैं, आपके माउथ से स्टमक में जाएगा via passing through the esophagus. तो जैसे ही माउथ एरिया से नीचे, मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है.
ये आवाज ठीक है? अभी वॉइस ठीक है? जी ठीक है। मैम थोड़ा बहुत पहले से बेटर है, चलिए शुक्र है। सो ओके, एज फार एज फंक्शन इज कंसर्न, सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन जो है उसमें स्वेलो करने का काम होता है, ठीक है। अंदर यहाँ से इधर जाएगा, दैट इज स्वेलोइंग, डेग्लूटेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। देन हाउ डज इट हेल्प इन ब्रीदिंग? ब्रीदिंग में किस तरह से ये हेल्प करता है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रीदिंग? एनीबडी? ओके, ब्रीदिंग में कब हेल्प करता है? ब्रीदिंग में ये तब हेल्प करता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था स्वेलोइंग के वक्त, यानी जब भी आप खाना निगल रहे होते हैं उस पॉइंट पे आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम या तो आपका क्या कहते हैं हम ट्रैकिया ओपन होगा या फिर आपका ईसोफेगस होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे ही आप खाना निगल रहे हैं सो एक ट्रैक को बंद होना है। बट व्हाट इफ अगर आप कोई चीज़ च्यू कर रहे हैं, ठीक है, आपके मुंह में है अभी, तो आप इतनी देर तक तो नहीं रुक सकते हैं। सो एट दैट टाइम क्या होता है, आपका जो ये सॉफ्ट पैलेट है इट डिप्रेस, ये नीचे की तरफ आएगा सो दैट देयर इज नो फूड गोइंग बैक और स्वेलोइंग का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। टू अवॉइड दैट सॉफ्ट पैलेट डिप्रेस कर देगा अपने आप को ताकि आप सांस ले सकें, ठीक है। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली soft palate helps in breathing while you are chewing a food or while a food is present in your mouth. So it aids swallowing, खाना निकलने में मदद करेगा, breathing में help करेगा, ठीक है। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है स्पीच में। जब हम स्पीच पढ़ेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वर्ड्स आर फॉर्म, फोनेशन कैसे होता है, देन विल सी व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन एग्जैक्टली स्पीच। सो बस याद रखो कि इट हेल्प्स इन स्पीच ऑल्सो। कमिंग टू इट्स एनाटॉमी, इट हैज़ टू सर्फेस। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इसकी दो सर्फेस हैं, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। द ओरल सर्फेस, द इंफीरियर सर्फेस इज कॉल्ड एज द oral surface and the superior one is called as the nasal surface because it is facing the nasal cavity or it is a continuation of the nasal cavity as compared to oral cavity is smaller, ठीक है। nasal cavity यहाँ पे खत्म हो गई, oral cavity मतलब जो है that extends up to this level. सो कमिंग टू द ओरल सर्फेस, हम नीचे की सर्फेस की बात करें जो आपको नीचे की तरफ है, इस सर्फेस पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इस सर्फेस पे सेक्रेटरी सीरस ग्लैंड्स होते हैं। सीरस ग्लैंड्स आर नथिंग बट दे आर द म्यूकस ग्लैंड्स ओनली, जिसमें सीरस सेक्रीशन होता है। एंड दिस सीरस सेक्रीशन जो है ये थोड़ा सा कंपोजिशन में डिफर कर जाता है, बस उस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। तो हम इसे कह सकते हैं दे आर म्यूकस ग्लैंड्स, अगर आपको समझना है। सो सीरस ग्लैंड्स आर नथिंग, दे आर द म्यूकस ग्लैंड्स, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग म्यूकोजा सो दैट मतलब एक तरह से ये लिक्विड प्रोवाइड करता है सो दैट जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, देखो लिक्विड फैलेगा, फूड पार्टिकल फैलता नहीं है, ठीक है। जैसे ही फैलेंगी चीज़ें तो ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, परसीव कर पाएगा इंफॉर्मेशन को। सो दैट हाउ टेस्ट बर्ड्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने में। कौन? सीरस ग्लैंड्स ऑफ द ओरल सर्फेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट में आपके कुछ सीरस ग्लैंड होते हैं जो कुछ सेक्रीशंस रिलीज करते हैं, सीरस सेक्रीशन रिलीज करते हैं। और उन सीरस सेक्रीशन का काम क्या होता है? उन सीरस सेक्रीशन का काम होता है खाने के साथ मिलके खाने को फैलाना, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया में जितने टेस्ट बड्स होंगे वो उस चीज़ को रिसीव कर सकें इंफॉर्मेशन को। देन वी हैव सम पैलेटाइन ग्लैंड्स ऑल्सो, और यहाँ पे कुछ रेफे पाए जाते हैं। रेफे कहते हैं कोई रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, हल्का छोटे छोटे से रिज लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपकी ये जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, सीरस ग्लैंड्स होते हैं, या आपके ये पैलेटाइन पार्ट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि पैलेटाइन बोन के पीछे है पैलेटाइन पार्ट जो है। तो यहाँ पे पैलेटाइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनकी ओपनिंग होती है, तो वो जो ओपनिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं पैलेटाइन फोविया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नेजल सरफेस। नेजल सरफेस जो है यहाँ पे आपकी जो है ऊपर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो फ्लोर है उसी के आगे कंटिन्यूएशन फॉर्म आएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो नेजोफेरिंग्स का फ्लोर बनाएगा। दिस इज अ नेजोफेरिंग्स एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया है। दिस इज नेजोफेरिंग्स, सो इट फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ द नेजोफेरिंग्स। विच सरफेस? नेजल सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। देन इट हैज़ 4 बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर है इसका, ठीक है। देन वी हैव पोस्टीरो इन्फीरियर बॉर्डर जो यहाँ पे होगा। ये आपको लेटरल व्यू दिखा रहे हैं इसलिए आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। एंड देन वी हैव अ लेटरल बॉर्डर, अभी मैं इसका वाला व्यू भी दिखा दूंगी दूसरा। देन वी हैव अ लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो है जैसे हमने कान में पढ़ा था, ठीक है, जो एंटी हेलिक्स है जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसके 2 क्रस हो जाते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेम इज द केस ओवर हेयर।
जब भी ये लेटरली यानी साइड में रन करता है, जैसे आप ये देखेंगे, ये आगे का पार्ट जो है, ये आगे का पार्ट कहलाएगा एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर। ऐसे पीछे भी एक बॉर्डर होगा, दैट इज पोस्टीरियर इन्फीरियर। कमिंग टू द लेटरल बॉर्डर्स में इसके दो पार्ट में दो आर्च बनते हैं, ठीक है। एक आर्च आप ये देख सकते हैं, एक आप पीछे देखेंगे, सेम इज द केस ओवर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये दो आर्च हैं, इनका नाम है पैलेटोग्लोसल आर्च एंड पैलेटोफिरिंजियल आर्च। पैलेट से स्टार्ट हो रहा है, पैलेट से स्टार्ट हुआ। ग्लॉसर टर्म जो है दैट इज यूज फॉर टंग, क्योंकि ये टंग की तरफ है, आगे की तरफ टर्म है, तो हमने बोल दिया पैलेटोग्लॉसल, और ये अटैच होता है टंग के रूट पे आके बिल्कुल। सो दिस आर्च इज कॉल्ड एज, यहाँ से जो ये आर्च आया जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे थे, दिस आर्च इज कॉल्ड एज पैलेटोग्लॉसल आर्च। सिमिलरली एक पीछे ऐसे ही होता है, पीछे की तरफ जो होता है, क्योंकि पीछे फेरिंग्स है और पैलेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसे बोल दिया पैलेटोफिरिंजियल आर्च। और ये फेरिंग्स की एंटीरियर उस पर आके लिटरली एंटेरोलेटरल पे आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने टर्म दे दिया पैलेटोफिरिंजियल आर्च। तो देयर आर टू आर्च, पैलेटोग्लॉसल आर्च जो आगे की तरफ है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है, दिस इज पैलेटोग्लॉसल आर्च जो आगे है, और एक पीछे की तरफ होता है, इसे हम बोल देते हैं पैलेटोफिरिंजियल आर्च। कभी कभी जब आप ऐसे इस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो कोई भी आपको पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफिरिंजियल ना बोल के एंटीरियर फॉसिस पोस्टीरियर फॉसिस बोलेगा, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट आर एग्जैक्टली दीज, ठीक है। फॉसिस टर्म यूज किया जाता है, आगे वाले को एंटीरियर फॉसिस, पीछे वाले को पोस्टीरियर फॉसिस के नाम से। हो सकता है आपको कोई पूछ ले एग्जाम में या फिर वाइवा में पूछे व्हाट इज एग्जैक्टली एंटीरियर फॉसिस। सो एंटीरियर फॉसिस इज नथिंग, इट इज अ पैलेटोग्लॉसल आर्च ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का जो पैलेटोग्लॉसल आर्च है, यानी एंटीरियर में जो आर्च बनता है या लेटरल बॉर्डर जो होता है एंटीरियर, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर फॉसिस और पैलेटोग्लॉसल आर्च। नेक्स्ट आता है इन दोनों के बीच में एक जगह बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेटाइन फोसा, और उस पैलेटाइन फोसा के अंदर या क्या कहते हैं टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स आर नथिंग बट दीज आर द लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स हैं दैट आर फाउंड ओवर हेयर, सो एंड दे आर लार्ज इन साइज, विजिबल थ्रू योर नेकेड आई, सो दैट इज वाई इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, दैट इज टॉन्सिल्स, ठीक है। सो इसे हम पैलेटाइन फोसा भी बोल सकते हैं, हम इसे टॉन्सिलर फोसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर टॉन्सिल्स और टॉन्सिलर फोसा। कमिंग टू द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो होती हैं, अब इसमें 5 मसल्स पाई जाती हैं, हमने बोला था इट इज कम्प्लीटली मस्कुलर। सो इसमें 5 मसल्स पाई जाती हैं, और पांचों के पांचों जो मसल्स होती हैं वो स्कल के बेस से या फिर फेरिंजियल वॉल से अराइज करेंगी, और सब आके एपोन्यूरोसिस जो था उसमें आके मोस्ट ऑफ देम जो है उसमें आके इंसर्ट कर जाएंगी। सबसे पहले है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, दिस वन इज जो आपको ये साइड में दिख रही है, दिस इज टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ठीक है। टेंसर वेलाई पैलेटिनी का काम क्या होता है, टेंसर के साथ एक और पढ़ लेते हैं, दैट इज पैलेटोफेरिंजियस, द सेकंड मसल, दिस वन आपको यहाँ से दिख रही है, दिस इज पैलेटोफेरिंजियस। एज सच ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों को, ठीक है, इनके बस नाम याद हो जाए और फंक्शन याद हो जाए, देन दैट्स मोर देन इनफ। टेंसर वेलाई पैलेटिनी एंड पैलेटोफेरिंजियस, ये दोनों मसल का काम है सॉफ्ट पैलेट को टेंस करना। व्हाट डज द टर्म टेंस मीन्स हियर? हम कह रहे हैं सॉफ्ट पैलेट को टेंस कर रही है। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है स्टिफ हो जाना, ना आगे मूव करना ना पीछे मूव करना। स्टिफ हो जाना कि ना कोई मुझे आगे मूव कर सके ना कोई मुझे पीछे मूव कर सके। आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप किसी ने आपको धक्का दिया, लेकिन अगर आप टेंस्ड हैं यानी स्टिफ्ड हैं तो आप मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि हम वहीं पे खड़े रहें। So that is tensing. So tensor velli palatini, as the name suggests, and palatopharyngeus, these two muscles tenses the soft palate. But what is the need of the tense? टेंस करने की ज़रूरत क्या है? होता क्या, जब हम खाना खाते हैं, अब खाना जो है वो कोई लिक्विड तो है नहीं जिसको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, फूड है, फूड में क्या है आपको एज पर फूड का ही भी नहीं है, ओके, फूड लेते हैं, फूड जो है उसको एक स्पेस चाहिए, ठीक है, उसका अपना एक एरिया होता है। सो जब वो पास कर रहा होगा, पास करते वक्त वो ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर वो ना जाए उसकी वजह से आपका जो सॉफ्ट पैलेट है ये टेंस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेंसर वेलाई पैलेटिनियन पैलेटोफिरिंजियस। जिसकी वजह से टंग जब प्रेस करता है पीछे की तरफ खाना तो वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे जाता है। व्हाई? बिकॉज टेंसर वेलाई पैलेटिनियन एंड पैलेटोफिरिंजियस बोथ मसल्स टेंसेस द सॉफ्ट पैलेट, स्टिफ कर देती हैं सॉफ्ट पैलेट को कि वो ऊपर ना जाए, तो आराम से खाना नीचे की तरफ चला जाता है।
नेक्स्ट इज लिवेटर विलाय पैलेटनी, नाम सजेस्ट कर रहा है एलिवेट करेगा सॉफ्ट पैलेट को। अब सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ जाएगा, आप यहाँ पे देखें ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है ये नेजोफेरिंग्स का और ओरोफेरिंग्स के बीच में जो ये गैप था, इस गैप को बंद कर देगा। इस गैप को बंद कर देगा तो क्या होगा, आपका खाना आराम से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी खाना खाते हैं तो आप कभी भी सांस नहीं ले सकते। तो सांस इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि आपका जो सॉफ्ट पैलेट था इट गेट्स एलिवेटेड, इट क्लोजेस अ कम्युनिकेशन बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड द ओरोफेरिंग्स एंड हेल्प्स इन deglutition. थर्ड मसल आती है पैलेटोग्लॉसिस। एज द नेम सजेस्ट, पैलेट से आके आपके जिस पैलेट था ये एपोनेरोसिस, ठीक है, पैलेट से नीचे आ गया आपके टंग पे। इसका काम क्या होता है, ये सॉफ्ट पैलेट को डिप्रेस करती है। डिप्रेस करती है ताकि जब आप खाना खा रहे हो तो वो अंदर ना चला जाए बेवजह। ठीक है, पहले हमें इसे च्यू करना है, ऐसा तो नहीं है मुंह में पानी डालते हैं समटाइम, क्या आप मुंह में रोक सकते हैं, बट इसे आपको रोकना पड़ता है। अगर आप ना रोके तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त आपको उसे अपने मुंह में थोड़ी देर रखना है सो दैट यू कैन च्यू इट प्रॉपरली, ग्राइंड कर दें थोड़ा स्मॉलर पार्टिकल्स में। फॉर दैट आपका सॉफ्ट पैलेट जो है उसको नीचे आना है, नीचे आना है ताकि फेरिंग्स और ओरल कैविटी के बीच में जो है कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाए। जैसा कि आप देखेंगे, इसे अगर हम आगे की तरफ ऐसे लेके आ जाएंगे, ओके यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे नीचे बंद कर देंगे तो पीछे क्या था, फेरिंग्स, आगे क्या है, ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच का जो दीवार है वो किसने बंद कर दी, सॉफ्ट पैलेट ने। क्यों बंद कर दी, ताकि एक तो हम सांस ले सके आराम से, दूसरा कि जो आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये यहीं पे रहे ताकि हम इसे आराम से च्यू कर सकें, फिर ये बाहर जाए अंदर की तरफ नीचे, या डिग्लूटेशन या स्वेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। सो टू अवॉइड स्वेलिंग एंड promoting breathing during swallowing, during chewing your food is done by this muscle, which palatoglossus muscle. The last one is a musculus uvula. It shortens the uvula. As such नहीं पता है कि uvula का function क्या है हमारे human body में, but ऐसा देखा गया है कि it shortens the uvula. Which muscle? Musculus uvula is there that shortens the uvula. So these are the 5 muscles that helps the soft palate in during these movements. ठीक है, नेक्स्ट आ गई इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई अगर हम देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट इज सप्लाइड बाय द असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, यानी फेशियल आर्टरी इज सप्लाइंग द सॉफ्ट पैलेट, एंड देन वेनस ड्रेनेज अगेन इज देयर इन द टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में 3 टाइप की सप्लाई होती है। सेंसरी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई वो सप्लाई है जिसमें से आपका प्रेशर, टेम्परेचर, जो जनरल नॉर्मल सेंसेशंस वहाँ से जाएंगे, दैट विल बी टेकन बाय 2 नर्व्स। एंटीरियरली जो सॉफ्ट पैलेट है उसको भी थोड़ा सा हमने डिवाइड कर दिया। एंटीरियरली जो एंटीरियर पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, दैट इज टेकन बाय लेसर पैलेटाइन नर्व, दैट इज मैक्सिलरी नर्व, और जो पोस्टीरियर में है दैट इज टेकन बाय ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। 2 नर्व्स हैं जो सेंसरी सप्लाई कर रही हैं, द मैक्सिलरी नर्व दैट इज अ ट्राइजेमिनल एंड द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। कमिंग टू द मोटर इनोवेशन, मोटर इनोवेशन का मतलब होता है मसल्स को इन्फॉर्मेशन आना। ठीक है, मसल्स के पास आपके क्या कहते हैं, इम्पल्स आएंगे कि उनको बंद करना है, खोलना है, क्या करना है। सो दैट इज़ डन बाय द वेगस नर्व। हमने 5 मसल्स पढ़ी थी, 5 मसल में से 4 मसल्स को सप्लाई करती है वेगस थ्रू इट्स फेरिंजियल प्लेक्सिस। बट एक मसल है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, टेंसर वेलाई पैलेटनी, दैट टेंसर्स द सॉफ्ट पैलेट, दिस इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल की ब्रांच मैंडिबुलर है, इसकी एक और ब्रांच रहती है मीडियल टेरिगोइड नर्व। तो मीडियल टेरिगोइड नर्व ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व सप्लाइज द टेंसर वेलाई पैलेटनी। रेस्ट अदर 4 मसल्स आर सप्लाइड बाय द vagus nerve, that is the 10th cranial nerve. Then it has been seen there are certain taste buds even are present on the soft palate. So those taste buds are innervated by facial nerve. एक और नर्व है हमारी, दैट इज फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होती है दैट जो है वो सॉफ्ट पैलेट में जो भी टेस्ट बड्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेके जाती है आपकी फेशियल नर्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट वी विल स्टडी द टंग। टंग को देखा जाए तो टंग के बारे में बहुत कुछ है। टंग जो है नॉर्मल सी बात है, एक यूनिक स्ट्रक्चर है। ओके, पिंक कलर का है, क्लियरली विजिबल है, मस्कुलर ऑर्गन है, एंड ओरल कैविटी प्रॉपर में पाया जाता है। एंड आप देखेंगे कि जो आपकी टंग होती है दैट इज ऑलवेज मॉइस्ट, ठीक है, हमेशा वेट रहती है, एंड दैट इज ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सीरस एंड
salivary glands. काम अगर देखा जाए तो of course it helps in mixing the food, then help in swallowing, then speech में भी help करती है, and the gustatory perception, that is the taste perception को बोलते हैं gustatory perception. टंग का जो साइज़ है दैट इज़ अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट्स बीन ऑब्जर्व कि मेल्स में टंग जो है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. Then it has 3 parts. The tip area clearly visible here. This is the tip area, and then we have the body up to this area. This is the complete body of the tongue, and then we have a base at the posterior. ठीक है, these are the pharyngeal arches. This is tonsillar fossa and tonsil, and this is epiglottis behind. So this is, तो इसे हमने दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे जब हम पढ़ेंगे. दिस इज एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. सराउंडिंग स्ट्रक्चर देख लें तो एंटीरियरली अपर एंड लोअर जॉ होता है, टीथ होते हैं. सुपीरियरली जो है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है. इन्फीरियर में चले जाएं तो इन्फीरियर में नीचे म्यूकस लेयर है जो हाईली रिच है, उसमें काफ़ी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑफ कोर्स सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. पोस्टीरियर लेटरली आ जाएं, लेटरल में वैसे एंटीरियर में देखें तो यहाँ पे क्या होंगे, चीक्स होंगे. पोस्टीरियर में आ जाएं तो आपको पता है ये दो आर्च होंगे, पैलेटोग्लॉसल, पैलेटोफेरिंजियल, एंड विद टॉन्सिल्स इन बिटवीन. अब पोस्टीरियर में चले जाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पे एपिग्लॉटिस मिलेगा, नीचे लेयरिंग स्टार्ट होगा तो लेयरिंग्स का इनलेट मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ओरोफेरिंग्स का पोस्टीरियर वॉल मिलेगी. आप जैसे पीछे जाएंगे सबसे पीछे आपको ओरोफेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल मिलेगी. सोच के देख लो, सब इंशाल्लाह समझ में आ जाने वाली चीज़ है. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए. ठीक है, एंटीरियर में क्या है कुछ याद करने वाला नहीं है, सब कुछ आप देख सकते हैं. जितना भी अभी पढ़ा है सब आपको विजिबल है. एंटीरियर में अपर एंड लोअर जॉ है, टीथ है, सुपीरियरली हार्ड सॉफ्ट पैलेट है. इन्फीरियर में रूट में म्यूकोजल लेयर, नीचे आप देखेंगे आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे म्यूकोजल लेयर है, दैट इज़ हाईली रिच वेस्कुलेचर है, हमें वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है. एंड देन वी हैव सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. सब कहते हैं नीचे, तो लिंगुअल टर्म इज़ यूज फॉर टंग. सबलिंगुअल टंग के नीचे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सो दे आर प्रेजेंट. सो ये सब आपको इन्फीरियर मिल जाएगा. लेटरली आपको चीक्स मिलेंगे एंटीरियर 2/3 में, और पोस्टीरियर 2/3 में आपको यही पैलेटोफेरिंजियल आर्च, ग्लॉसल, फेरिंजियल एंड टॉन्सिस. पोस्टीरियर में आ जाएं या बेस पे बोल दें, बेस ऑफ टंग जो है, या पोस्टीरियर में क्या है तो आपके पास एपिग्लॉटिस है, नीचे लेयरिंग्स स्टार्ट होगा तो लेयरिंग्स का इनलेट है, एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स. सबसे पीछे चले जाओ, बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ अगर आप टॉर्च से देखेंगे तो कुछ आपको एक रेड कलर की एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. सो दैट इज नथिंग, दैट इज अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरोफेरिंग्स. सो एंटीरियर 2/3 की बात करें तो एंटीरियर 2/3 में दो पार्ट आ जाते हैं. द एपेक्स एरिया जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, एंड दिस एरिया दैट इज द बॉडी एरिया. ये जो बॉडी है और ये पोस्टीरियर 1/3 जो है, इन दोनों के बीच में एक मार्जिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सल्कस होता है. सल्कस आप समझते हैं, ग्रूव होगा हल्का सा. ठीक है, तो हल्का सा ग्रूव लाइक यहाँ पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस. और इसी सल्कस टर्मिनालिस के जो बीच में एक पोर्शन होता है, यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन सीकम. फोरामेन सीकम क्या है? फोरामेन सीकम जो है इट इज़ द डेवलपमेंटल साइट फॉर थायराइड ग्लैंड. यहाँ से ही आपका थायराइड ग्लैंड का मतलब ओरिजिन हुआ था ड्यूरिंग योर दैट फीटल लाइफ. देन कमिंग टू द इंटीरियर पे आ जाए तो इंटीरियर में आपको क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल मिड लाइन ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर मिलता है. ठीक है, समटाइम इट इज़ फुरोड, यानी ज़रूरी नहीं है कि बीच में ये फटा हुआ हो, दैट सम टाइम होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ में पाया जाता है कुछ में इट इज़ लाइक कुछ कभी कभी पाया जाता है, कभी कभी नहीं पाया जाता है. एक ही इंसान में एक ही टाइम पे कभी हो सकता है, एक इंसान मतलब सपोज एट आज है, एक हफ्ते के बाद हो सकता है ना हो. सो वी हैव लॉन्गिट्यूडनल मिड लाइन ग्रूव्स देख सकते हैं जो आपको क्लियरली विजिबल है. देन जो ये ऊपर की सरफेस होती है, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज डॉर्सल सरफेस. ठीक है, मतलब सुपीरियर इन्फीरियर ना के हम इसे कहते हैं डॉर्सल सरफेस. एंड डॉर्सल सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, दोज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पेपिले. एंड बिकॉज ऑफ दीज पेपिले द डॉर्सल सरफेस इज रफ, थोड़ा सा आपको रफ एंड मिलेगी. इन्फीरियर में चले जाएंगे तो इन्फीरियर में आपको लिंगुअल वेन्स मिलेंगी, क्लियरली विजिबल हैं, आप लोग अपने आप को देख सकते हैं मिरर में. सो यू विल फाइंड लिंगुअल वेन्स ओवर हियर. और लिंगुअल वेन्स के दोनों तरफ कुछ बीडेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. दिस बीडेड लाइक प्रोजेक्शंस आर नथिंग, दिस इज कॉल्ड एज प्लाइका फिम्ब्रिएटा. ठीक है,
So this was all about your anterior 2/3 and next is posterior 1/3. पीछे आप आ जाइए posterior 1/3 पे. तो posterior 1/3 भी rough end होती है, but वहाँ पे जो rough end structure होता है that is due to lingual tonsils. आगे आपके क्या थे? आगे आपके थे सारे के सारे papilla. पीछे आ गए lingual tonsils. ये जो आपका tonsil होता है जो सिर्फ normal tonsil कहलाता है, ठीक है? This is pharyngeal tonsil. और जो टंग पे पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल. टॉन्सिल इज नथिंग बट दीज आर lymph nodes. So lingual lymph nodes are present posteriorly and laterally अगर आप जाएंगे so you'll find pharyngeal tonsils. And lingual tonsils तो होते ही होते हैं लेकिन पैपिला यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा कि एंटीरियर में पैपिला पाए जाते हैं और पोस्टीरियर में लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं. लेकिन बात करते हैं टेस्ट बड की. तो टेस्ट बड जो होते हैं वो दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं. पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीरियर दैट इज कंप्लीट टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. अभी हमने बात की थी पैपिला की. पैपिला जो होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सो हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? पैपिला क्या है मैंने बताया था, दीज आर प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. कुछ अलग से प्रोजेक्शन नहीं है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वही प्रोजेक्टेड आउट है एंड गिविंग रफनेस टू द टंग. नॉर्मल सी बात है, अगर ये प्रोटेक्ट कोई भी चीज़ सरफेस पे आप देख, अगर ये बहुत ज़्यादा हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा जूम आउट कर रखा है इसलिए आपको ये क्लियरली विजिबल है, ठीक है? सो ये नॉर्मल पैपिला जो आपकी टंग है उसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन की दीज आर द प्रोजेक्शन. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंगुअल पैपिला, जिसमें फर्स्ट आती है फिलीफॉर्म पैपिला. व्हाट आर फिलीफॉर्म पैपिला? फिलीफॉर्म पैपिला जो हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट. एक तो ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं आपके टंग के ऊपर. इन्हीं की वजह से आपकी टंग कभी कभी वेलवेटी दिखती है. देन इसका जो प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन जो है दैट इज टूवर्ड्स द ओरोफेरिंक्स. यानी ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये जो आपको इस तरह से खड़े खड़े दिख रहे हैं एग्जैक्टली ये बिल्कुल सीधे वर्टिकल नहीं है, कह सकते हैं. अगर आप बाहर से देखेंगे तो इट इज पोस्टीरियरली प्रोजेक्टेड दैट इज टूवर्ड योर ओरोफेरिंक्स. इनका जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज टूवर्ड ओरोफेरिंक्स. नेक्स्ट है ये जो आपके प्रोजेक्शन से ये फर्दर जैसे ही ऊपर जाते हैं ना, फिर ये छोटे छोटे और फिलामेंटस प्रोसेसेस बनाते हैं, ठीक है? और ये फिलामेंटस प्रोसेस जो होता है इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज इट प्रोवाइड फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तभी जो फूड है, जो भी फूड बोलस है उसमें मूवमेंट होगा और हम आसानी से च्यू कर पाएंगे. इसमें एक चीज़ होती है, आपको मैं बता देती हूँ, ये जो पैपिला होता है इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि अलग से एक तो ये उभरे हुए हैं, पैपिला बोला इसीलिए बिकॉज ये उभरे हुए हैं. इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है? जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं. बट फिलीफॉर्म पैपिला वो पैपिला है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते. आउट ऑफ द 4 लिंगुअल पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, दे आर मोस्ट अबेंडेंट. सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट है हमारे टंग पे, बट स्टिल दे डिवॉइड ऑफ दिस टेस्ट बड्स. तो इनका काम क्या है, ये करने क्या है? फर्स्ट हमने तो पढ़ लिया, इट प्रोवाइड फ्रिक्शन प्रोवाइड किया. सेकेंड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ टच की सेंसेशन को भी ये लोग लेके जाते हैं. कोई चीज़ सख्त है, आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सख्त है? टेस्ट तो नहीं बताएगा. सो दैट जनरल सेंसेशन जो है उसके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओवर दीज फिलीफॉर्म पैपिला. नेक्स्ट इज फंजीफॉर्म पैपिला. फंजीफॉर्म पैपिला जो है ये मशरूम लाइक होते हैं, ठीक है? दे आर रेड कलर्ड, या दे आर मशरूम लाइक एंड दे आर, एक मिनट, फंजीफॉर्म, या दे आर मशरूम लाइक एंड दे आर स्कैटर्ड. ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ओके, फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एंटीरियर 2/3 पे. ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कंप्लीट 2/3 पे वो पाए जाएंगे. फंजीफॉर्म जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स, टिप पे पाए जाते हैं. जो आपकी टंग की टिप थी, एपेक्स था, वहाँ पे पाए जाएंगे. एंड ऑन द लेटरल मार्जिन्स, ठीक है? कौन से पाए जाते हैं? फंजीफॉर्म पाए जाते हैं. और इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर होते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है? एंड इनकी जो एक पहचान है वो ये है, दे आर रेड इन कलर, ठीक है? अगर आप मुँह खोलेंगे कभी कभी, आप देखिए, आप जब स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं तब आप अपने जो है पैपिलास को अच्छे से देख सकते हैं. अब आपको पता है कौन सी पैपिला कैसा दिखता है. कोई राउंड हेड का होगा देन इट इज़ फंजीफॉर्म. कोई नुकीले छोटे छोटे डॉट से स्ट्रक्चर लाइक होगा तो इट मे बी फिलीफॉर्म.
फिलीफॉर्म मैंने बताया था छोटे छोटे होते हैं, फंजीफॉर्म थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज इट इज़ मशरूम लाइक, तो इट हैज़ अ राउंडेड हेड और नीचे छोटा सा पेडिकल है। तो नीचे तो ऑफकोर्स नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ऊपर से आपको राउंडेड हेड क्लियरली विजिबल हो सकता है। सो इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ लोकेशन पता होगा, लोकेशन है मार्जिन पे, तो लोकेशन मार्जिन पे आप देखिए अगर आपको ऐसा कुछ विजिबल है दैट मीन्स दैट इज फंजीफॉर्म। अब अपना मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, कभी चल जाए तो बात अलग है। ओके इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया। दिस इज फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला जो होते हैं ये आपके पोस्टीरियरली बट इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर 1/3 तो नहीं बोल सकते, एंटीरियर 1/3 का जो लास्ट 1/3 होता है उसके भी मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर रेड लीफ लाइक रिजेस एंड जिसकी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टेस्ट बड्स। इस पे एक दो नहीं, इस पे बहुत सारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। एंड एक सर्कस टर्मिनालिस हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक वी शेप सर्कस टर्मिनालिस होता है, ठीक है। उसी के लेटरल एंडिंग्स पे यू विल फाइंड दिस फंजीफॉर्म पैपिला इन अ मार्जिन, रो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक रो यहाँ प्रेजेंट होगी, दूसरी रो यहाँ प्रेजेंट होगी, दे आर लीनियरली प्रेजेंट, ठीक है। लीनियर एंड पेयर्ड होते हैं, जैसा एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। एंड सिमिलरली पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक लाइन यहाँ होगी फिर इसी के पैरेलल लाइन यहाँ होगी, इसी के पैरेलल लाइन यहाँ होगी, इसी के पैरेलल लाइन यहाँ होगी। जबकि फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म थे, सॉरी इसका नाम मैं चेंज कर लूँगी, दिस इज फोलिएट, ठीक है। जो फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म थे वो ऐसे कहीं 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 भी प्रेजेंट थे, बट हियर इन दिस केस दे आर पेयर्ड, यानी जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, एंड दे लाई पैरेलल टू ईच अदर। ओके मैंने किसी का नाम नहीं चेंज किया है, सॉरी गाइस। Okay, the last one is a circumvallate, which are these one. These are V-shaped के present होते हैं, एक रो में होते हैं और इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. There are hardly 4 to 6 papilla in each limb of the sulcus terminalis. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये इतना बड़ा है एंड साथ में इस एक मतलब जो आपका पैपिला था, पैपिला के अंदर विद इन अ पैपिला एक फुरो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, एज सच यहाँ भी विजिबल है ऊपर ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसका एक काम होता है वो ये होता है कि आपके पास ना अपार्ट फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया कुछ सीरस ग्लैंड होते हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो आपको ये देख रहे हैं, इनका जो सेक्रीशन होता है दैट ओपन्स इन दीज, अपने आप को म्यूट करिए जिसने भी अनम्यूट किया है, ठीक है। सो दीज ग्रूव्स जो थे, इन ग्रूव्स में क्या होता है, इन ग्रूव्स में सीरस ग्लैंड्स जो आपके थे उनकी ओपनिंग होती है, उनका सेक्रीशन यहाँ से फिर बाहर आएगा, ठीक है। तो दिस इज सर्कमवेलेट एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो आपके पैपिला थे दैट इज अ फिलीफॉर्म, उन पे ही एब्सेंट थे। दिस वॉज मशरूम शेप एंड दिस उसका हमने आपको फोलिएट का स्ट्रक्चर नहीं बताया है। फोलिएट का लीफी स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको एक लीफ हो, ठीक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ लाइक प्रेजेंटेशन होता है उन लोगों का, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैपिला। कमिंग टू द मसल्स ऑफ द टंग, मसल्स हम कल कर लें कहो तो स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है। हमने पढ़ा था टंग जो है इट इज़ अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, कम्प्लीटली मस्कुलर ऑर्गन है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी मसल जो है वो अटैचमेंट अगर आप देखेंगे हमेशा वो एराइज करती है किसी बोन से और इंसर्ट भी जाके करती है किसी बोन के, ठीक है। बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, देर आर फ्यू एक्सेप्शन। जैसे आप ले लिए आई को, तो वो राइज तो सब कर रहे थे, एक पीछे कॉमन ओरिजिन था उनका बोन पे वहाँ से, बट आके इंसर्ट वो कहाँ कर रहे थे, आई के ऊपर। आई जो है वो कोई बोन नहीं है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इसका आ जाता है आपका डायफ्राम को ले लीजिए आप। आपने डायफ्राम पढ़ा था जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जाके इंसर्ट या अराइज करती हैं, कुछ मसल्स होती हैं। तो जो आपका डायफ्राम है वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन इटसेल्फ। तो वहाँ पे भी क्या है, एक मसल दूसरी मसल से अराइज कर रही है, जो नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली ओरिजिन एंड इंसर्शन मसल का कहाँ से होता है, बोन से होता है। थर्ड होता है आपका पेरिनियम। अगर आप पेरिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे जितनी भी मसल्स हैं वहाँ पे दैट गेट इंसर्टेड इन द पेरिनियम एरिया विच इज़ नीदर मस्कुलर नॉर बोनी स्ट्रक्चर। सेम इज़ अ केस विद द दिस टंग। टंग भी हमारी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनलेस मास है, ठीक है, इसमें बोन नहीं होता है बट स्टिल इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल्स जिसका काम है अपने आप को बाहर निकालना, फोल्ड करना, ठीक है, फ्लैट करना, रिट्रैक्ट करना, सब कुछ होता है। ये जो आपकी टंग है आप इसमें देखेंगे बीच में
एक सेप्टम होता है, जैसे आपके नोज में बीच में एक सेप्टम था ताकि दो नेजल कैविटी को दो में डिवाइड कर सकता, इसी तरह से आपके टंग में बीच में एक सेप्टम होता है, उसे हम बोलते हैं लिंगुअल सेप्टम। सो देयर आर अ पेयर ऑफ मसल्स, हमेशा हर टाइप में पेयर ऑफ मसल्स होंगी, एक पेयर इधर होगी एक पेयर इधर होगी, ठीक है। सो देर आर टू ग्रुप ऑफ मसल्स, मसल्स को हमने इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक मसल एंड सेकेंड मसल इज द एक्सट्रिंसिक मसल। कमिंग टू द इंट्रिंसिक मसल जो होता है वो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द टंग, टंग का कोर बनाता है, दैट इज द डीपेस्ट पार्ट। तो ये आपके चार हैं, कौन कौन से, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, आप देखिए लॉन्गिट्यूड है तो ये ऐसे इस तरह से होगा, यानी अगर इसमें देखेंगे तो दिस इज द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड लाइक इस तरह कर रहा है, इस तरह से इसके फाइबर्स ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। देन वी हैव वर्टिकल मसल, कैन विजिबल, ये आपके वर्टिकल विजिबल है, खड़ी खड़े मसल्स हैं। देन वी हैव ट्रांसवर्स मसल, यानी ये इस तरह से होंगे लेटे लेटे से, ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स वन। एंड देन वी हैव इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, दो है लॉन्गिट्यूडनल, एक ऊपर लेयर होती है एक नीचे लेयर होती है। सो दिस इज इनके फंक्शंस मैंने इन्हीं के साथ लिखते हैं। जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये रिट्रैक्ट करेगा और एलिवेट करेगा, टंग के एपेक्स को उठाएगा। इसी तरह इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, ये रिट्रैक्ट करेगा, ये यानी अंदर जाएगा आपकी टंग को लेके, और एपेक्स ऑफ द टंग को लोअर डाउन करेगा, यानी नीचे लेके जाएगा। काफ़ी लव्स होते हैं जिसपे आपको आपका जो टंग है वो आपको ऊपर अपर जॉ पे लगाना होता है, कई बार आपको नीचे लगाना होता है। सो वो हेल्प होता है इंट्रिंसिक मसल से। इंट्रिंसिक मसल का काम मेनली क्या था, इट ऑल्टर्स द शेप एंड साइज ऑफ द टंग, जो शेप और साइज टंग का होगा चेंज, दैट इज डन बाय द इंट्रिंसिक मसल्स। सिमिलरली वर्टिकल मसल है, ये ब्रॉडन एंड इलोंगेट करेगी आपके टंग को, वाइल ट्रांसवर्स मसल है, इट नैरोज एंड इलोंगेट्स, किसी भी चीज़ को आप पतला करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ी जाएगी किसी, ठीक है। सो दीज आर द फोर मसल्स, ऐसा कुछ नहीं है याद करने लायक, बस आपको पता होना चाहिए। अगर डायग्रामेटिकली याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, चार मसल हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, ट्रांसवर्स